C. Let me start with C, and then मैं I'll go backwards. पहले मैं C बताऊंगा, फिर B, then A, ठीक है. So C is a little bit. I'll be honest. C थोड़ा सा intuitive है. मैंने C का solution थोड़ा सा intuitively बनाया है. But let's still talk about it. Open link in new tab. So the question says. Okay. So the question. Let me. In the question, you have given two arrays, array A and array B. Array A is initially all zeros. Array B is something B1, B2, B3, Bn, and you have to transform B into, sorry, you have to transform A into B. Now the operation that you can use is you can pick any number x, ठीक है, and then suppose A है यहाँ पे, ठीक है, A कुछ transform हो चुका है at this point, let's say at time t, at time equals to t, more like operation equal to I or something, ठीक है, ये फिजिक्स में होता था. A1, A2, A3, ठीक है, An. तो you take an integer x, and integer x can be any integer you want. अब फिर तुम देखो कि यहाँ से तुम स्टार्ट करोगे, ठीक है, कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सा a of I है that is strictly less than x, ठीक है. if a of 1 is strictly less than x, then अपन इसी को पकड़ लेंगे, या फिर अगर a of 1 is greater than equal to x, then हम आगे बढ़ेंगे. फिर अपन a of 2 को देखेंगे, फिर if this satisfies this condition हम यहीं पे रुक जाएंगे, if it does not हम यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे. let's say a of 3 satisfies the condition, तो हम क्या करेंगे, a of 3 पे a of 3 प्लस x बना देंगे और विल रिप्लेस दिस, ठीक है. सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू, ये एक ऑपरेशन हुआ, ठीक है, वन ऑपरेशन. इन दिस वे हम एरे ए को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम 0 0 0 टू समथिंग, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज, कैन यू ट्रांसफॉर्म दिस, इज इट पॉसिबल टू ट्रांसफॉर्म दिस इनटू बी, ठीक है. इज इट पॉसिबल? if it's possible, print out yes. If it's possible, print. If it's not, then print out no, ठीक है. So this is the question. Now the जो intuition मैंने सोचा वो ये था कि मैंने बस दो elements consider किए, A1 and A2, ठीक है. And मैंने consider किया, okay, let's say A1 is bigger than A2, ठीक है. Let's say A1 is bigger than A2. Let's say A1 is like, ठीक है, it's just bigger, it's just very very big. तो let's say दो है बस, तो what I can do is just मैं पहले a of 1 ले लूँगा as x, and then सबसे क्लोजेस्ट, सबसे छोटा इंडेक्स जो a x से छोटा है वो 0 है, then it will become a1 and 0, and then मैं a2 ले लूँगा, so this will become a2, ठीक है. And then I have transformed this size 2 array into the desired array. But what if a1 is less than a2, ठीक है. I think दिया हुआ है कि permutation होगा. Is it a permutation? Okay, it's not necessarily a permutation, but ठीक है, that's not an issue. Because equality को मैं consider नहीं कर रहा हूँ, because equality में भी same ही चीज़ होगी. Even if it is greater than equal to a2, it will still follow the same steps. If a1, अगर a1 छोटा है a2 से, this is interesting because then आप starting में a1 ले लो, बट देन अब आप क्या करोगे, अब A2 लोगे, A2 तो बड़ा है तो A2 इसी में ऐड हो जाएगा, बट मुझे तो इसमें करना है. सो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट इन सम वे कि ओके यहाँ दोनों में कुछ है, और फिर जो नई चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ दैट विल बी एडेड टू दिस, ठीक है. बिकॉज अगर ये इससे बड़ा है, ठीक है, तो जो भी चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ वो, you know what I mean, like वो that should be okay. अगर ये इससे बड़ा है और मैं कुछ इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ और मैं कुछ बड़ा सा ले रहा हूँ, ठीक है, that makes sense. बट देन मैं पूरा A2 नहीं ले सकता, ठीक है, मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है. सो व्हाट इज़ अ गुड वे टू डिस्ट्रीब्यूट दिस? व्हाट इज़ अ गुड वे? I'll tell you what a good way is. I'll tell you that.
ओके व्हाट इफ मैं A2 माइनस A1 ले लूँ एंड देन आई ऐड दैट, ठीक है. So then what I do is मैंने A1 दोनों जगह भर दिया. now comes A2 माइनस A1, ठीक है. सॉरी A1 ये दोनों A1 है. अब मैंने इस टर्म को कंसिडर किया. जस्ट एज्यूम कि ये एक टर्म है, ठीक है. AX1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1. नाउ लेट्स से A2 माइनस A1 A1 से छोटा है, ठीक है. इफ़ A2 माइनस A1 इज़ लेस देन इक्वल टू A1, तो फिर मैं इसको स्किप करके यहाँ पे डाल सकता हूँ इस वैल्यू को. तो देन इट बिकम्स A2, ठीक है. मैं इसमें प्लस करूँगा A2 माइनस A1, तो दिस होल थिंग बिकम्स A1 एंड A2, ठीक है. now what if A1 this is the condition अगर A1 is greater than equal to A2 minus A1. What if it's not? What if A1 is less than A2 minus A1? In that case, it's just simply impossible. In that case, possible नहीं है. बस that's it. क्या क्यों possible नहीं है, मैंने बस अब ये कैसे समझाऊँ मैं. It's just not possible, ठीक है. तुम करके देख लो. It's just you'll quickly find out it's not possible, and this is the basis of it all. अपन पूरा array रिवर्स करते रहेंगे. B1 B2 B3, ठीक है. if at any point B1 लाइक यहाँ तक का जो मिनिमम है, ठीक है, यहाँ तक का मिनिमम है, और लेट्स से B ऑफ I है, ठीक है. यहाँ तक का जो मिनिमम है वो अगर मैं इससे माइनस करता हूँ तो जो वैल्यू आ रही है, इज़ इट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जो मिनिमम वाली वैल्यू थी. इफ़ येस देन पॉसिबल ही नहीं है. इफ़ नो देन पॉसिबल है, ठीक है. देन अपन ये चीज़ करके कर सकते हैं. अगर नहीं है तो ये मैं स्टिल थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ क्यों पॉसिबल नहीं है, ठीक है. सो अगर A2 इज़ ग्रेटर देन A1, ठीक है. इफ लेट्स से ये कंडीशन है, ठीक है. अगर ये कंडीशन है ना, एंड वी हैव A1 एंड A1, ठीक है. आई मीन इसको इट्स गुड टू हैव A1 रादर देन A1 0, ठीक है. बिकॉज देन हम एक बहुत बड़ा एक नंबर ऐड करना चाह रहे हैं ना. तो जो नंबर हम इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, इफ़ यू कैन रिड्यूस दैट नंबर, इफ़ यू कैन रिड्यूस दैट नंबर, देन अच्छी बात है. बिकॉज देन जो नंबर हमें ऐड करना है, जो x हमें ऐड करना है, देखो x हैज़ टू बी स्मॉलर देन दिस, ठीक है. x हैज़ टू बी स्मॉलर देन दिस एंड इट हैज़ टू बी एडेड टू दिस. तो अगर हम इसको कम रख रहे हैं तो इसमें हमें जो ऐड करना पड़ेगा वो बहुत बढ़ जाएगा. सो x बहुत बढ़ जाएगा इन दिस केस. तो x अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो देयर इज़ अ चांस कि वो इसमें ऐड हो जाए. वी हैव टू कीप x स्मॉल. सो इट्स बेटर कि हम अगले वाले एलिमेंट को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रखें, ताकि जो हमें ऐड करना पड़े वो छोटा हो जाए. और अगर वो छोटा हो जाएगा तो इट्स लेस चांस कि वो इसमें ऐड हो जाएगा. बट स्टिल हमें बहुत बड़ी चीज़ इसमें ऐड करनी पड़ेगी, and that will, before getting added to this, it will get added to this. Now you're saying कि okay, एक छोटा सा, actually A1 minus 1 हमें रखना चाहिए यहाँ पे. हाँ, because सेम नहीं रख सकते. A1 and then A1 minus 1. wait a second. A2 minus A1. मैंने किया क्या था? hold on a second. A2 minus A1 करके जो वैल्यू आ रही है, ओके, A2 माइनस A1 करके जो आ रहा है हमें वो यहाँ पे रखना है, फिर A1 ऐड करना है बाद में. आई अपोलोजाइज. A2 माइनस A1 यहाँ पे रखना होगा और फिर हम A1 ऐड करेंगे. बिकॉज एंड A1 हैज़ टू बी ग्रेटर देन दिस. A1 हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू A1 एंड इट हैज़ टू बी, प्लीज एक्सक्यूज मी. Okay. So हाँ, A1, this will be added to this, and then सबसे पहले क्या करेंगे? अगर we have 0 0, okay, हाँ, we have 0 0, we'll make it A1 0, और फिर we'll make it A2 minus A1, and then because this has to be smaller than A1, and फिर अपन A1 ऐड करेंगे जो कि इस पे ऐड हो जाएगा, फिर it will become A1 A2, right? This is the correct sequence of operations.
So now, if this is the case, तो हम अब हमें a1 ऐड करना है. Look, the point is, तुम if you write this down, मुझे exactly याद नहीं आ रहा मैं कैसे समझाऊँ. इसके अलावा तुम कुछ भी कर लो. अगर तुम इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे डाल दो, ठीक है, एंड देन तुम इसको A2 बनाने की कोशिश करो. अगर A2 बहुत ज़्यादा बड़ा है A1 से, लाइक मोर देन ट्वाइस ऑफ A1, देन इट्स जस्ट नॉट गोना बी पॉसिबल. वो चीज़ इसमें पहले ऐड हो जाएगी, ठीक है. That's the basis of it, and that's the solution. Moving on to B. मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने क्लियरली नहीं समझाया, बट मेरे दिमाग में और कुछ आ नहीं रहा है एट दिस पॉइंट कि मैं समझाऊँ उसको. Let me know if it's not clear. Okay, B वाला is pretty straightforward. कितना कॉन्डेसेंडिंग लगता है ना बोलना कि ओ ये वाला क्वेश्चन तो काफ़ी आसान था. दिस इज़ तो प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये तो प्रिटी, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को बोलते हुए और दोज क्वेश्चंस जो मुझे हार्ड लगे थे, और मैं इरिटेट हो जाता हूँ कभी कभी कि नहीं है भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्सप्लेन कर. सो राइट, सो यू हैव एन एरे A1 A2 A3 टिल AN. तुम्हें या तो लेफ्ट से लेना है या फिर राइट से हटाना है. लाइक एट एनी पॉइंट तुम या तो यहाँ से लोगे या तो यहाँ से लोगे, एंड देन यू हैव टू प्रिंट इट अकॉर्डिंगली. अगर तुम यहाँ से एलिमेंट ले रहे हो तो L लिखना होगा, एंड तुम यहाँ से एलिमेंट ले रहे हो तो R लिखना होगा, एंड देन यू हैव टू मेक अ स्ट्रिंग आउट ऑफ इट, L L R R ब्ला ब्ला ब्ला. एंड जो एरे बनेगा ना यहाँ से लेके, बाय द वे दिस इज अ परमुटेशन, सो ऑल द एलिमेंट्स आर यूनिक, दैट्स अ गुड थिंग. और जो बनेगा यू हैव टू मेक श्योर कि उस नए एरे में, लेट्स कॉल दैट न्यू एरे P1 P2 P3, that new array should not have that new array should not have any 4 consecutive elements in the same order. In the same order means ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 4 consecutive elements are in decreasing order, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 4 consecutive elements are in increasing order. ये दोनों केस नहीं होना चाहिए. तो मैंने क्या स्ट्रेटजी सोची. दिस इज सॉर्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम. आई थिंक कंस्ट्रक्टिव का टैग होगा इसमें. ये खुलना नहीं चाहिए, बंद हो जाओ. ओके, कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स. सो इसमें देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस. मैंने जो सोचा है वो ये है कि तुम बस एल आर करते जाओ, एल आर, ठीक है, अब टिल एल आर. अगर ऑड है 1 2 3 4 5 6 7 8 तो एक और एल आ जाएगा. एंड इन दिस वे, और फिर तुम एक जो रेस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग एरे बन रहा है वो भी बना लो, P1 P2 P3 Pn. अब इसके बाद क्या करो, तुम इसमें अब चेक करो, ठीक है. इसमें अब चेक करो कि अगर इफ 4 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स आर इन द सेम ऑर्डर, देन जस्ट स्वैप वन ऑफ देम, ठीक है. जस्ट स्वैप वन ऑफ देम एंड कंटिन्यू, ठीक है. अगर मैं आई पे हूँ, मैं i = 4 से स्टार्ट करूँगा. मैं 1 इंडेक्सिंग करता हूँ बाय द वे. यहाँ से मैं देखूंगा अगर इसके पीछे लाइक 4 एलिमेंट्स कंसेक्यूटिवली एक सेम ऑर्डर में, तो बस i और i-1 को मैं स्वैप कर दूंगा, एंड दैट्स अबाउट इट. फिर मैं आई डू द सेम फॉर दिस वन, इवन दो आई डोंट थिंक दिस में इस आई थिंक +2 करके भी चल सकता है काम, बट मैं +1 करके कर रहा था जस्ट टू बी सेफ. हाँ, आई एम सेइंग कि आई इंडेक्स अगर एट एनी पॉइंट स्वैप करना पड़ा है तो ऑफकोर्स ये तो दिस वुड नॉट फॉल इनटू द सेम कंसेक्यूटिव ऑर्डर, बिकॉज ये 3 तो सेम कंसेक्यूटिव ऑर्डर में है ही नहीं, तो ये 4 कैसे हो सकते हैं. ये 4 हो सकते हैं, तो मैं +2 करके इंडेक्स बढ़ा सकता हूँ, बट मैंने वैसा नहीं किया, करने की ज़रूरत भी नहीं है. सो गेट द पिक्चर राइट. मैंने ऐसे किया है. देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस, बट आई थॉट दिस वाज प्रीटी सिंपल. मूविंग ऑन टू A. What's the time? 14 मिनट्स. ओके, मैं ऐसे थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ कि मैं कम टाइम में ही समझा, बिकॉज आई हैव रियलाइज मैं थोड़ा बहुत लंबा वीडियो बना देता हूँ कभी कभी ज़्यादा समझाने के चक्कर में. एंड मैं चाहता हूँ कि मैं छोटे में ही लाइक छोटे वीडियो में ही क्रिस्पली अच्छे से समझा दूँ, लाइक वो सारे पॉइंट्स बता दूँ जो
that will make it clear, you know. I think A can be done by binary search, but since n itna chota hai or n is just A, look, brute force is low key fun sometimes, you know. Brute force is just, it's so fun, and that's what I have done. ठीक है, n अगर बहुत ज़्यादा छोटा है तो we can do n square, and that's exactly what I've done. So the thing is, let's just sort it. ठीक है, यहाँ पे order matter नहीं करता. तुम्हारे पास you have like n elements, a1, a2, a3, ठीक है, and just pretend this is sorted, because sorting in this case does not harm the जो भी हम operations कर रहे हैं इसमें. तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें हमें ये करना है, हमें एक वैल्यू दे रखी है c, ठीक है. At every point two things happens. मैं a लिख देता हूँ यहाँ पर. At every point two things happen. पहला तो तुम कोई एक a चूज करोगे एंड फिर उसके a को हटा दोगे, ठीक है. दिस विल फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग क्या होगा, सेकंड थिंग ये होगा कि उस a को छोड़ के जितने भी सारे a's है ना, दैट विल डबल, ठीक है, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, एंड दिस इज व्हाट विल हैपन, एंड देन द साइकिल विल रिपीट, ठीक है. नाउ द कैच इज दैट तुम जो भी एरे एलिमेंट हटा रहे हो, अगर उसकी वैल्यू सी इक्वल्स 30 क्यों लिखा मैंने, इज जस्ट सी, ठीक है. सी भी एक वैल्यू दे रखी है. इफ दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन सी, आई थिंक ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सी. इफ इट इज ग्रेटर देन सी, देन तुम्हें एक कॉइन लगेगा, लाइक यू विल हैव अ कॉइन. और सी डज नॉट स्टैंड फॉर कॉइन, सी इज जस्ट लाइक अ लिमिट, ठीक है. तुम्हें एक कॉइन लगेगा हटाने के लिए उस एरे को. और अगर सी इज नॉट ग्रेटर देन, सॉरी, इफ जो एरे तुम हटा रहे हो, एरे वैल्यू तुम हटा रहे हो, दैट इज लेस देन इक्वल टू सी, देन तुम्हें 0 कॉइन्स लगेंगे, ठीक है. सो ऑब्वियसली इट सॉर्ट ऑफ मेक सेंस कि मैं बड़े वाले से स्टार्ट करूँ, इधर से स्टार्ट करूँ, या फिर थोड़ा बीच से थोड़े बड़े एलिमेंट से स्टार्ट करूँ, एंड देन हटाते जाऊँ, एंड छोटे वाले बढ़ते बढ़ते टाइम लग जाएंगे. नहीं, एक सेकंड, आई टेक माई वर्ड्स बैक. बड़ा वाला तो बढ़ते ही रहेगा, अगर सी से ज़्यादा कोई है तो वो तो बढ़ते ही रहेगा, तो वो कितना भी बढ़ जाए उसको, उसमें एक कॉइन तो लगाना पड़ेगा, भले वो स्टार्टिंग में मैं करूँ या लास्ट में. तो लेट्स स्टार्ट विद द छोटे कॉइन्स, बिकॉज वो बढ़ के आगे जाके दिक्कत दे सकते हैं. दैट इज सॉर्ट ऑफ इंट्यूटिव थिंग. सो यू जस्ट सॉर्ट इट आउट, सॉर्ट दिस a1, a2, a3, an, and then you'll do what, you'll just, let's say यहाँ पे this is the barrier, ठीक है, यहाँ पे a of I is equals to c, और यहाँ पे a of I plus 1 is greater than c, and then यहाँ से c से बढ़ेंगे, ठीक है. तो इतने कॉइन्स तो मिनिमम लगेंगे, ठीक है. जो भी ये वैल्यू है n माइनस आई, इतने कॉइन्स तो मिनिमम लगेंगे. बट what about these, ठीक है. So what about these? Now we might be able to finish them off without any coins, or maybe not, ठीक है. तो what I have done is यहाँ से आप बड़े वाले से स्टार्ट करो और पीछे जाते जाओ, ठीक है. If at any point you encounter okay, so you have a value, मैंने एक मल्टीप्लायर लिखा है x equal to 1, और जैसे जैसे मैं पीछे जा रहा हूँ मैं इसको इंटू टू करते जा रहा हूँ, ठीक है. और फिर जो भी मैं करेंट एलिमेंट में हूँ, मैं उसको ax1 से मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ कि ओके ये c से कम है कि नहीं. तो लेट्स से मैंने कोई भी एक रैंडम i लिया, i equals to 5, एंड फिर मैं i equals to 5 से लेकर i equals to 1 तक जा रहा हूँ, और फिर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ. इफ़ एट एवरी पॉइंट a of I multiplied by ax1 is, if at every point a of I multiplied by ax1 is less than equal to c, then that means this is possible, this is entirely possible कि मुझे इतने ही कॉइन्स लेने पड़े एंड बाकी सारे मैं बिना कॉइन्स के ख़त्म कर दूँ. तो द नंबर ऑफ कॉइन्स आई रिक्वायर्ड इन दिस केस इज n माइनस आई. तो अब अगले स्टेप में क्या करूँगा, फॉर इफ i equals to 5 पॉसिबल, i equals to 4 भी पॉसिबल होगा, तो वट इफ, तो अब मैं बढ़ाऊंगा ना, तो i equals to 6 के लिए मैं चेक करूँगा, या फिर i equals to 7 के लिए मैं चेक करूँगा. सो यू कैन सॉर्ट ऑफ सी की बाइनरी सर्च से कैसे हो सकता है,
ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो, इफ़ दिस इज़ पॉसिबल देन यहाँ पे चेक करो, इफ़ दिस इज़ नॉट पॉसिबल देन यहाँ पे चेक करो। एंड इंस्टेड ऑफ बाइनरी सर्च मैंने बस सारे आई जो यहाँ पे लिया मैंने, आई इक्वल्स टू 0 से लेकर 30 तक सारे चेक कर लिया, एंड विच एवर इज़ द like the maximum I value, because the maximum I value will correspond to the minimum number of coins. So इसको बढ़ा के इसको घटा के जो भी इसके minimum value है, that is I have printed that out as the answer. And that's about it. Thank you for watching.